So, good morning, class. Today we are starting with what happens in a reflex action. Reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. We say, I jumped out of the way of the bus reflexly, or I pulled my hand back from the flame reflexly, or I was so hungry my mouth started watering reflexly. What exactly do we mean? A common idea in all such examples is that we do something without thinking about it or without feeling in control of our reactions. Yet these are the situations where we are corresponding with some actions to change in our environment. How is control and coordination achieved in such situations? कभी कोई चीज़ गरम गरम आपको कोई चीज़ दे या आपको पता नहीं और आप हाथ लगाओ पता चले कि गरम है, तो कितनी सेकंड के अंदर आप छोड़ देते हो उस चीज़ को? नहीं मेज़र कर सकते ना आप कितनी सेकंड लगी छोड़ने के लिए कि भाई चीज़ पकड़ी फिर बाद में पता चला और ये तो गरम है छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने हाथ लगाया और गरम है तो तुरंत हाथ रिफ्लेक्स तुरंत आ जाएगा। अगर आपके सामने किसी ने इमली दिखाई खट्टी तो मुंह में अपने आप पानी आ जाएगा। तो ये कितना टाइम लगता है उस चीज़ के लिए, है ना? रिफ्लेक्सली मतलब तुरंत हम अपनी आजू बाजू की वातावरण को, अगर कोई अच्छा हो रहा है तो फील हैप्पी, अगर कुछ खतरे का महसूस होता है तो सिमट जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता है हम आजू बाजू के इन्वायरमेंट को देख के। तो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, राइट? How is control and coordination achieved in such situation? Let us consider this further. Take one of our examples. Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us, or in fact for any animal. How do we respond to this? On seemingly simple way is to think consciously about the pain and possibility of getting burned and therefore move our hand. An important question then is, how long will it take us to think all this? The answer depends on how we think. If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve a creation of such impulse. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. If this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense networks of intricately arranged neurons. It sits in the forward end of the skull and receives signals from all over the body which it thinks about before responding to them. Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various parts of the body. Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry this signal back to different parts of the body. If all of this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burned. How does the design of the body solve this problem? Rather than having to think about the situation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, the process of detecting signal or input and responding it by an output action might be completed quickly. Such a connection is commonly called a reflex arc. Figure 7.2. अब देखो फिगर 7.2 में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रिसेप्टर यहाँ पर देखो, ठीक है। हीट पेन रिसेप्टर इन द स्किन, स्किन को पता लगता है कि चीज़ गर्म है कि ठंडी है, ठीक है। वो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वो कैरी करते हैं कहाँ पर? ब्रेन के पास मैसेज देते हैं ब्रेन को। फिर ब्रेन से रिस्पॉन्स आता है कि भाई ठंडा है तो तुम्हें ज़्यादा देर पकड़ोगे तो सुन्न हो जाएगा हाथ, गर्म चीज़ है तो तुम्हारी स्किन जल जाएगी तो डिसीज़न लेके छोड़ देने को बोलेगा।
राइट। तो ये जो मैसेज जो है सेंस का हमारा स्किन से लेके ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन में वो एनालाइज होगा और वहाँ से फिर रिस्पॉन्स होके तैयार आएगा, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। We should, where should such arc or connections be made between the input nerve and the output nerve? The best place, of course, would be at the point where they first meet each other. Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain. अभी ऐसा है कि कुछ बसें सारी जो हैं, किसी को मुंद्रा जाना है, किसी को मांडवी जाना है, किसी को गांधीधाम जाना है, राइट। और बसें सब आ रही हैं अहमदाबाद मोरबी की साइड से, है ना। तो सबसे पहले वो आके जाएगी कहाँ पर, भुज के बस डिपो में। फिर भुज में से जिसको गांधीधाम जाना है वो उस तरफ जाएगी, मुंद्रा जाना है इस तरफ जाएगी, मांडवी जाना है तो इस तरफ जाएगी, अलग अलग जगह पर जाएगी, राइट। तो भुज जो है वो सेंटर है हमारा, सारी बसें यहाँ आती हैं। उसी तरह पूरी बॉडी में हमारा, अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ हाथ ही जल सकता है, पीठ भी जल सकती है, पैर भी जल सकते हैं, सर भी जल सकता है हमारा। तो सारी जगह का कनेक्शन दिया हुआ है ना। कहीं पर भी कुछ भी लगेगा या जलेगा या कुछ भी फील होगा तो वो मैसेज सारे के सारे जो है वो ब्रेन में जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में आके मिलेंगे, राइट। फिर वो क्या करना है उस चीज़ का, वहाँ से वापस रिटर्न भी आएंगे हर एक जगह पर मैसेज। So, nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain. Reflex arcs are formed in this spinal cord itself, although the information input also goes on to reach the brain. Of course, reflex arcs have evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. In fact, many animals have very little or none of the complex neuron work needed for thinking, so it is quite likely that reflex arcs have evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought process. However, even after complex neuron networks have came into existence, reflex arcs continues to be more efficient for quick response. अभी देखो, इंसान की बात जाने दो, जानवर है, कोई कुत्ता भौंक रहा है तुम्हारे ऊपर, राइट। आपको पता है आपके हाथ में पत्थर नहीं है ना, फिर भी खोटे खोटे ज़मीन में से यूँ उठा के यूँ करोगे आप तो डॉग भाग जाएगा, है ना। उसको नहीं पता है कि इसने तो खाली खाली हाथ यूँ किया है, उसके हाथ में पत्थर वत्थर नहीं है। तो हमारे जितना डेवलप्ड ब्रेन एनिमल्स में नहीं होता है, राइट। कि भाई देखूँ तो सही इसके हाथ में है क्या नहीं पत्थर, नहीं होगा ना, खाली खाली डरा रहा होगा तो, राइट। तो इंसान सोच सकते हैं, जानवर इतना नहीं सोच सकते। तो हमारा रिफ्लेक्स आर्क्स जो है ना, रिस्पॉन्स क्या करना है बाहर की सिस्टम के साथ में, तो वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में ही मैसेज ब्रेन को पहुंच जाता है, राइट। Can you now trace the sequence of events which occur when a bright light is focused on your eyes? अगर सेम चीज़ आपकी आँखों के ऊपर रोशनी डाल दी जाए तो तुरंत आप ऐसा कर लोगे। हाथ को भी सिग्नल मिल जाएगा कि रोशनी को रोक लो, और आंखें भी यूँ आप कर लोगे, मुंह भी घुमा लोगे ताकि रोशनी न जाए। ह्यूमन ब्रेन इज़ रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड का क्या सिर्फ यही काम है रिफ्लेक्स एक्शन करने का? Obviously not. Since we know that we are thinking beings, spinal cord is made up of nerves which supply information to think about. Thinking involves more complex mechanism and neural connections. These are concentrated in the brain, which is the main coordinating center of the body. The brain and spinal cord constitute the central nervous system. They receive information from all the parts of the body and integrate it. We also think about our actions. Writing, talking, moving a chair, clapping the end of the program are examples of voluntarily actions which are based on deciding what to do next. So the brain also has to send message to the muscles. This is the second way in which the nervous system communicates with the muscles.
The communication between central nervous system and the other parts of the body is facilitated by a peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. The brain thus allows us to think and take action based on that thinking. As you will expect, this is accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs. The brain has 3 such major parts or regions. हाँ वो आयो ने एवर ही चालू करें ना एवरेज चालू करें हाँ एवरेज करें. The brain has 3 such major parts or regions, namely the forebrain, the midbrain and the hindbrain. अभी ब्रेन जो है हमारा है ना, जैसे पूरी बॉडी के साथ कनेक्शंस हैं हमारे. तुमने देखा किसी चीज़ को, खतरे को, फिर उसके साथ उसी तरह बिहेव करना पड़ेगा आपको. तो एक इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है, ब्रेन उसको एनालाइज करेगा कि ये खतरा है कि मज़े की बात है कि कुछ नहीं करना है, रहने दो, राइट. फिर उस तरह से वो मसल्स को ऑर्डर देता है. अगर चींटी काट रही है तो हाथ को ऑर्डर देगा कि पीछे थोड़ा सा खुजा दो, राइट. अगर सांप है तो ज़्यादा चौकन्ना हो जाएगा, है ना. मतलब खतरा कितना है उसके हिसाब से वो तैयारी करेगा, राइट. कि भाई चलो कोई बात नहीं, कोई ख़तरे की बात नहीं है, तो जो भी चीज़ देख ली उसको अपनी नज़रअंदाज कर दिया. तो एक इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है, फिर ब्रेन उसके हिसाब से रिप्लाई करता है बॉडी के पार्ट्स को, राइट. तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन जो है उसमें एनालाइज होता है. तो ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं. एक क्या, फोर ब्रेन आगे का ब्रेन, मिड ब्रेन बीच का ब्रेन एंड हिंड ब्रेन पीछे का ब्रेन, राइट. द फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. आगे का जो ब्रेन का पार्ट है वो मेन थिंकिंग का, सोचने का काम करता है. इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स. Separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight and so on. तो ब्रेन के पास भी क्या है, चीज़ें देखी, चीज़ें सूंघी. अभी कोई चीज़ ऐसी है, तुम्हारी आँख बंद है, गुलाब की खुशबू लग रही है मेरे को तो, या कोई परफ्यूम आपको पता है पर्टिकुलरली ये परफ्यूम ये सर ही लगाते हैं, लगता है सर आ गए, है ना. तो ये तो तुमने चीज़ देखी नहीं, सिर्फ स्मेल गई तुम्हारे अंदर, फिर भी एनालाइज हो गया ना तुम्हारा, हाँ ये परफ्यूम तो ये सर ही लगाते हैं. तो सूंघने की, जिसको आप टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते. कभी कभी आप आवाज़ सुनते हैं कुछ तो समझ जाओगे हाँ स्कूल की वैन आ गई. स्कूल की वैन की आवाज़ कैसे फिट बैठी है तुम्हारे ब्रेन में, है ना. ऐसी सिमिलर आवाज़ आएगी, तुम बोले नहीं अपनी स्कूल की वैन की नहीं है आवाज़. कभी कभी कोई आवाज़ बोलता है तो आप पता लगा ले दो कौन आया है, देखा नहीं, राइट. फिर भी तो हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, जो टच को, स्मेल को, उसको हियरिंग को कर सकते हैं. There are separate areas of association with this sensory information is interpreted by putting it together with the information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain. Based on all this, a decision is made about how to respond. All this decision is made about how to respond, and information passes on to the motor areas which control the movement of voluntary muscles, for example our leg muscles. However, certain sensations are distinct from seeing or hearing. How do we know that we have eaten enough? अभी आपको कैसे पता चलता है कि आपने भर पेट खाना, पेट भर गया? दिखता तो है नहीं तुम्हें, स्टमक दिखता है, ऐसे देख लिया, हाँ अभी थोड़ी जगह बाकी, एक रोटी आ जाएगी,
अभी थोड़ी रोटी आ सकती है या थोड़ी सी दाल ले लेती हो, ऐसे दिखता है पेट? नहीं दिखता है। फिर तुम्हें महसूस कैसे होता है कि हाँ पेट भर गया? एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हो, हाँ अभी थोड़ी और भूख है, अभी मैं खा लूँगी थोड़ा सा। तो ये क्या है? अंदाज़ लग रहा है ना तुम्हें, भले एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन तुम अंदाज़ लगा सकते हो कि हाँ अभी भी भूख है मेरे अंदर, या पेट भर गया मेरा। तो ये सारे सेंसेशंस हमारे कैसे आते हैं? डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू नो दैट वी हैव ईटन इनफ? द सेंसेशन ऑफ फीलिंग full is because of a center associated with hunger which is in a separate part of the forebrain। तो हमारे ब्रेन का हिस्सा जो है यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया गया है, देखो, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, राइट। स्पाइनल कॉर्ड है, क्रेनियम है, स्कल है, राइट। फिर पोन्स, मेडुला, सेरेब्रिलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंड ब्रेन। अभी ये ब्रेन में ये सब काम कैसे करता है आपको तो कुछ समझ में नहीं। जैसे अखरोट कैसे होती है, अखरोट खोल के खाइए, है ना, उसका जैसा स्ट्रक्चर होगा तो हमें लगता है ये ब्रेन ही है इंसान का। इसका स्ट्रक्चर देखो और अखरोट का देखो, सेम लगेगा तुम्हें। इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें ना भगवान ने सिम्बलिकली बता रखी है हमको। मक्काई के दाने होते हैं ना, और दाड़म के दाने होते हैं, वो कैसे होते हैं? हमारे दांतों के जैसे, है ना। फिर मूली है, कैरेट है, उसको आप स्लाइस काटोगे ना तो बिल्कुल हमारी आँख के जैसी लगेगी, राइट। टमाटर जो है उसको आप काट के देखोगे तो न्यूरॉन्स के जैसे दिखेंगे तुम्हें वो। तो सारी चीज़ें जो है वो हमें कहाँ कहाँ काम आएगी, वो उसके जैसे हैं। तो अखरोट को भी देखोगे ना तो ब्रेन के जैसा दिखेगा तुम्हें। स्टडी द लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शंस, कैन वी फाइंड आउट द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट। अभी ये ब्रेन में जो जो पार्ट है ना, उसका एक एक क्या क्या पार्ट करता है ना, वो आएगा इसमें, जो हम कल करेंगे, ठीक है। आज यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं, इतना हाफ पैराग्राफ कर लेते हैं पूरा। Let us look at the other use of the word reflex that we have talked about in the introduction. Our mouth waters when we see the food we like without our meaning to. जब कोई अपनी फेवरेट चीज़ पसंद की देखो, जैसे पानी पूरी, तो मुंह में पानी आ जाता है, राइट। तो ये कैसे, तुमने सोचा था अरे इसने पानी पूरा बोला, नहीं अब तो मेरे मुंह में पानी आना चाहिए, चलो पानी आ गया, ऐसा नहीं होता है। रिफ्लेक्स तुरंत आ जाता है। आवर हार्ट बीट्स विदाउट मेकिंग आवर थिंकिंग अबाउट इट। कभी हमको हार्ट को बोलना पड़ता है कि भाई चलो धक धक करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, राइट। तो वो अपने आप धक करता रहता है। वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शंस ईजीली बाय थिंकिंग अबाउट देम even if we wanted to. So do we have to think about or remember to breathe or digest the food? So in between the simple reflex actions like change in the size of the pupil and the thought out actions such as moving a chair, there is another set of muscles movement over which we do not have any thinking control. Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and the hindbrain. All these involuntary actions, indulging blood pressure, salivation and vomiting, are controlled by the medulla in the hindbrain. अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको तुम्हें ऑर्डर नहीं देना पड़ता, भाई खाना खा लिया, अभी खाना पकाएगा, अंदर डाइजेस्ट कौन करेगा? हार्ट को धक धक करते रहना है, उसको ये ऑर्डर कौन देगा? ब्रेन ऑर्डर देगा तभी करेगा ना। तो अगर तुम्हें बोलना पड़ता सांस लो, सांस छोड़ो, तो तुम दूसरा कुछ काम ही नहीं कर सकते थे, है ना। तो भगवान ने कुछ काम ऐसे हैं मिड ब्रेन को दे दिया है कि वो अपने आप अंदर काम चलाता रहेगा, तुम्हें ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई चींटी काटेगी तो तुम्हें हाथ को ऑर्डर देना पड़ेगा, जल्दी हाथ जा खुजा ले, है ना।
तो कुछ चीज़ों को ब्रेन ऑर्डर देता है, किसको ऑर्डर नहीं देता है, अपने आप वो समझ जाता है ये करना ही है उसको। जैसे पेट में खाना गया तो तुरंत डाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो एक होता है वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में होता है, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, सोचना भी नहीं पड़ता उसके बारे में। नींद आती है तो तुम्हें सोचना पड़ता है। अब सो गए तुम, राइट, सांस कौन लेगा, तुम्हें ही लेनी है, लेकिन तुम तो सो गए हो, तो बोलेगा कौन अभी? हाँ, तो मिड ब्रेन ये सारे काम करेगा। Think about activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. These are possible due to the part of the hindbrain called the cerebellum. It is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body. Imagine what would happen if each of these events failed to take place if we were not thinking about it. तो सोचो अगर कभी ऐसा हो कि हमारे ये ब्रेन के पार्ट्स हैं, उसको आप ऑर्डर दोगे तो ही काम करेगा, ऑर्डर नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा। तो कोई कोई को लकवा हो जाता है, देखा है ना आपने, हाथ जो है ना यूं का यूं ही पड़ा रहेगा, अगर उसको हाथ हटाना है तो ये हाथ अपने आप नहीं हटेगा, आपको ऐसे करके हटाना पड़ेगा तब जाके हटेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन जो सिग्नल देता था ना ये इस तक पहुंच नहीं रहा है। इसके ऊपर मच्छर काट रहा है या मक्खी काट रही तो दिख रहा है उसको, लेकिन वो हटा नहीं सकता, राइट। तो किसी की हाफ बॉडी पैरालाइज हो जाती है ना, हाफ बॉडी, किसी की फुल बॉडी हो जाती है, तो पड़े रहते हैं, बस कुछ नहीं होता है उनसे। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ब्रेन की वजह से। कि ब्रेन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दो तरफ से, एक पूरी बॉडी में से ब्रेन में जाती है, फिर ब्रेन में से एनालाइज होकर पूरी बॉडी में वापस दी जाती है ना। किसी एक रास्ते की भी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाना बंद हो जाएगी, जैसे अभी तुम्हारी स्किन यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सुई चुपाओगे ना तो भी असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रही है, दर्द ही नहीं होता है। किसी किसी को देखना जो हो जाता है ना ऐसा, उसको वो मारते हैं, सुइयाँ चुभाते हैं, लेकिन उसको पूछते हैं असर हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिग्नल ही नहीं जा रहा है ब्रेन के पास। तो ये सारा ब्रेन का कॉम्प्लेक्स वर्किंग है। हाँ, तो ये कैसे काम करता है ये हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है।